So today we are going to discuss some of the very important topic from your current affairs. So in last 2 days, we have discussed some key issues as well as important topics from last 1 year current affairs, जो आपके लिए important है इस साल के prelims के लिए. ठीक है. Now today we are going to discuss some miscellaneous topics with respect to polity, governance, as well as constitution. Now, in which the first important topic here is this is related to PRP Act. So, PRP Act was there in the news. So, see, PRP Act of 2023, why this act is important? Let me tell you, because this act is having, you can say, significance with respect to our fourth pillar of democracy, that is press. तो ये press के लिए काफी ज्यादा important है. You can say media also. So this act, अब ये जो PRP एक्ट आया है, इससे पहले जो एक्ट था दैट इज प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867. तो PRP आने से पहले ये एक्ट हुआ करता था, दैट इज PRB, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स. ओके, नाउ remember this thing, there is one authority which is called as Press Registrar General of India, which replaces the registrar of newspaper for India. Okay, अब इसके इस बॉडी के डी रजिस्टर और रिप्लेस करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि न्यूज़पेपर के जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो अब काफी सिंपल हो गया और उसको ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू भी लाया जा चुका है गवर्नमेंट के प्रेस सेवा पोर्टल पर. नाउ दिस कम्स अंडर सिटीजन चार्टर. This comes under Citizen Charter of Governance GS Paper 2, and this is important for your prelims as well. Okay, whatever the government is taking the initiative, that comes under the governance. तो basically ये जो act आया Press and Registration of Periodicals Act of 2023, this simplifies the registration of procedures for newspaper as well as periodical journals, and there is an online system to register the newspaper or journals. Now for that there is a website, there is a portal called as Press Seva Portal. तो जो पहले मैनुअल प्रोसेस होता था, बार बार जाना पड़ता था ऑफिस, है ना, वो सारी चीजें खत्म कर दी थी. सो इट रिमूव्स द मैनुअल प्रोसेस. क्लियर? नाउ इट एग्जेम्प्ट्स बुक्स एंड जर्नल्स फ्रॉम मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. बुक्स एंड जर्नल्स को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. इसका फोकस है पीरियोडिकल्स पर. पीरियोडिकल्स याद रखिएगा वो होते हैं जो मैगजीन्स होती है, कमेंट्रीज होती है, जो टाइम टू टाइम मैगजीन्स आती रहती है ना, रेगुलरली पब्लिश न्यूज़पेपर, उनको हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं. क्लियर? नाउ ऑल एप्लीकेशंस लाइक रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, सर्कुलेशन, वेरीफाई करना, ये सारी चीजें अब उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है सेम पोर्टल, दैट इज प्रेस सेवा पोर्टल. So this initiative is considered as a part of good governance, and this is also a part of e-governance initiative. E-governance. Now, why government is doing everything online? Because as PM Modi said in his speech time to time that we want maximum governance, minimum human interference, minimum bureaucratic interference, maximum governance. मतलब गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा एफिशिएंसी पर फोकस करना है रादर दैट प्रोसीजर्स. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. टॉपिक समझ में आ गया व्हाई दिस एक्ट केम. So this is the part of e-governance. Clear, everyone? Okay. Now, after this, another important act, or you can say issue with respect to polity, is Citizenship Amendment Act. आप में से काफी सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा Citizenship Amendment Act of 2019, and then Citizenship Amendment Rules. अब दोनों में डिफरेंट है, Citizenship Amendment Act and then Citizenship Amendment Rules 2024. अब समझिएगा. Ministry of Home Affairs, they have notified Citizenship Amendment Rules. Clear? ये rules किस लिए बनाए गए? So that Citizenship Amendment है CAA जो 2019 में आया था, उसको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट किया जाए, जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए. What is the background? First of all, तो background क्या है इसका? CAA 2019 was passed under Article 11 of the Constitution, and now this Article 11 of the Constitution is related to the citizenship. That is, from Article 5 to 11, these articles are related to the citizenship.
So CAA 2019 was passed under Article 11. Clear? But इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड। क्यों? क्योंकि उस कोई भी जब रूल आता है, कोई भी एक्ट आता है, उससे रिलेटेड रूल्स बनाए जाते हैं। तो अभी तक सीएए का कोई भी रूल नहीं था, तो इसीलिए सरकार को, गवर्नमेंट को रूल बनाने थे। दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स इन 2024 सो दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। नाउ अब इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सो दिस एक्ट ग्रांट सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेंट्स। क्लियर? दिस एक्ट इज गोइंग टू ग्रांट सिटीजनशिप टू सर्टेन माइग्रेंट्स। क्लियर? Even if they lack valid travel documents under Citizenship Act 1955, अगर उनके पास वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो भी याद रखिएगा उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, बशर्ते वो कौन से माइग्रेंट्स होंगे? हिंदूज। दैट मीन्स नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है लाइक हिंदूज, जैन, सिख, देन बुद्धिस्ट, ऑल दीज। क्लियर? तो इसीलिए इस पर क्रिटिसिज्म भी आएगी। सो लेट मी टेल यू द क्रिटिसिज्म एंड अदर थिंग्स आल्सो। तो पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। नाउ दिस एक्ट एक्चुअली एग्जेम्प्ट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट में कुछ ग्रुप्स को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम बीइंग कंसीडर्ड एज इलीगल। क्लियर? इफ दे मीट फोर कंडीशन, if they belong to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian communities, they will be getting citizenship. And they should be from Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, जहां पर ये communities might. Clear? Now, these communities, these people should have entered India on or before December 31st, 2040. ये वो लोग होने चाहिए जिन्होंने December 31st या उससे पहले इंडिया में एंटर किया हो। क्लियर? नाउ दे आर नॉट इन ट्राइबल और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। ये ट्राइबल या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें ट्राइबल एरियाज को नहीं लिया गया, लाइक आसाम एंड मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड एक्सेट्रा। क्लियर? ना नेचुरलाइजेशन पीरियड जो है इसमें रिड्यूस कर दिया गया है। नॉर्मली नेचुरलाइजेशन जो पीरियड है इन माइग्रेंट्स के लिए 11 ईयर्स है, अब उसे 11 ईयर से 5 ईयर कर दिया गया है ना। एक रूल होता है ना, एक प्रोसीजर होता है, सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। नाउ these migrants are also exempted from the fines or penalties under the passport entry into India Act 1920। इनके ऊपर पेनल्टी भी नहीं लगेगी और इन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया फॉरेनर एक्ट 1946 से भी। क्लियर? नाउ OCI, Overseas Citizen of India registration can be cancelled on 5 specific grounds। अब OCI का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है 5 स्पेसिफिक ग्राउंड्स के बेसिस पर। अभी मैं बता दूंगा वो क्या है। नाउ तो ओवरऑल अगर आप देखें ये जो सिटीजनशिप एक्ट के वो अमेंड करने के लिए रूल आया, ये जो इंप्लीमेंट करने के लिए रूल आए हुए हैं, इसमें सबसे पहली चीज बोली गई है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर सिटीजनशिप। सो एलिजिबिलिटी सिटीजनशिप कैसे मिलेगी? बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन। दैट मीन दैट पर्सन शुड बी इंडियन ओरिजिन, स्पाउस या तो इंडियन ओरिजिन हो, माइनर चाइल्ड इंडियन ओरिजिन हो, OCI होल्डर हो, या वो इंसान हो जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन। क्लियर? वाई एन एम्पावर्ड कमिटी, एक एम्पावर्ड कमिटी के थ्रू जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी के बराबर। क्लियर? ना रिलैक्स डॉक्यूमेंट यूज, अब इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया है। एप्लीकेंट्स कैन प्रोवाइड 20 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक वीजा, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा। क्लियर? कि वो इंडिया में एंटर हुआ है। क्लियर? एज ए प्रूफ ऑफ एंट्री टू इंडिया। Then language requirement. Language requirement. Applicants must know one language from 8th schedule of the Indian Constitution। जो हमारे 8th schedule में लैंग्वेजेस दी हुई है उनमें से एप्लीकेंट को एक लैंग्वेज आना जरूरी है। Then renunciation of other citizenship. As we know that India does not follow dual citizenship, so applicants must declare renunciation of their previous country citizenship upon approval। जब उन्हें यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी तो उन्हें अपने पिछले देश की सिटीजनशिप को रिनाउंस करना पड़ेगा। जरूरत क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? पहली चीज, ताकि माइनॉरिटीज जो हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये सब है, इनको परसिक्यूशन से बचाया जा सके। सो इट इज अ काइंड ऑफ रियली ह्यूमन राइट। नेशनल सिक्योरिटी, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी। कैसे?
It differentiate persecuted migrants from illegal immigrants. Clear? तो इससे हमें समझ में आता है कि परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स कौन है, इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है जो जबरदस्ती घुस रहे हैं, है ना, जो इंडिया को डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। दैट पार्टीशन विक्टिम्स कैसे? बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्होंने परसिक्यूशन झेला है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी कितना, लास्ट ईयर ऑन 5th August 2024 शेख हसीना गवर्नमेंट वाज आउस्टेड एंड मोहम्मद यूनुस बिकेम चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश एज इंटरिम गवर्नमेंट. So various violations took place against the minorities in Bangladesh. तो ये एक्ट काफी ज्यादा इसीलिए रूल्स लेकर आए गए. अब इस पे कंसर्न और क्रिटिसिज्म क्या है? तो इसमें कुछ एक्सक्लूजन किया गया है सर्टेन माइग्रेंट्स का, है ना. इट डज नॉट कवर दी माइनॉरिटीज फ्रॉम श्रीलंका तमिल्स. ये याद रख, इसमें से तब श्रीलंका में जो तमिल्स है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है. म्यांमार के रोहिंग्या को एक्सक्लूड किया गया. देन नो प्रूफ ऑफ परसिक्यूशन रिक्वायर्ड. अब एक तरफ आप कह रहे हो कि जिनके साथ परसिक्यूशन हुआ है उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, दूसरी तरफ ये भी है, आपने ये भी कहा हुआ है कि परसिक्यूशन का हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है. Applicants do not need to prove that they have faced persecution. This is one of the drawback as well as concern also. Then there is a violation of Article 14, that is right to equality. Why? When India says that everyone is equal in the eyes of law, irrespective of religion, race, caste, gender, etc. So it only talks about Hindu, Jains, Buddhists, Christians, etc. But it excludes Muslims, Jews, atheists. इसमें मुस्लिम, ज्यूज और एथीस्ट नहीं है, विच रेज कंसर्न्स अबाउट इंडियन सेक्युलर्स. क्या जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है उस पर काफी ज्यादा सवाल. देन कट ऑफ डेट इज माइग्रेंट्स हु एंटर्ड आफ्टर 31st December 2014 दे आर एक्सक्लूडेड. जो 31st December के बाद आए 2014 में, उन सभी को इसमें रखा नहीं गया. दे आर एक्सक्लूडेड. नाउ व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट on India's foreign relations? So it may have strained ties with neighboring countries because India is saying that they are persecuting these countries are persecuting the migrants. Clear? So this issue is very important from the perspective of prelims. This much is clear to all of you. पूरा citizenship act समझ में आ गया? Okay. Another important issue, and that issue is related to draft digital personal data protection rules, है ना. So draft digital personal data protection rule 2025. तो ये अभी आया है जनवरी में, ये याद रखिए. The government of India has released a digital personal data protection rules 2025. अब पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, why this draft was created. This draft is created under Digital Data Protection Act of 2023. इसका फोकस किस पर रहेगा? डेटा प्रिवेसी, कॉम्प्लायंस एंड प्रोसेसिंग रूल्स. इन तीन चीजों पर फोकस रहेगा. डेटा प्रिवेसी, कॉम्प्लायंस एंड प्रोसेसिंग रूल्स. ओके. The first thing here that you can understand, what are the key provisions? Parental consent for children's data. अब इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, दे मस्ट गेट वेरिफिएबल पेरेंटल कंसेंट बिफोर चिल्ड्रन क्रिएट अकाउंट्स. मान लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चा कोई भी अगर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, उस पर पेरेंटल कंसेंट जरूरत लगेगा. अब पेरेंट की आइडेंटिटी कैसे वैलिड की जाएगी? पेरेंट्स आइडेंटिटी कैन बी चेक थ्रू गवर्नमेंट इशूड आईडी लाइक आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एटसेट्रा. ओके. तो गवर्नमेंट इशूड आईडीज में लगेगी. एग्जेप्शन किसको दिया गया है? हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड डे केयर सेंटर्स. Health care, education and daycare centers, they are exempted. Then data fiduciaries and their responsibilities. Clear?
डेटा फिड्यूशरीज क्या होती है? ये वो ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होती है जो डेटा को हैंडल, पर्सनल डेटा को हैंडल करती है। अब सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज कौन सी है? दीज आर दोज एसोसिएशन जो डील करती है सेंसिटिव डेटा से, एंड दैट डेटा इज अफेक्टिंग और इम्पैक्ट अवर नेशनल सिक्योरिटी। वो डेटा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। देन डेटा रिटेंशन। नाउ डेटा मस्ट बी डिलीटेड वंस इट और वंस कंसेंट एक्सपायर्स। डेटा को डिलीट कर दिया जाएगा एक बार अगर कंसेंट खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे लाइक एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड अंडर दिस रूल। नाउ कंसेंट एंड ग्रीवेंस रिडर्स। अब इसमें कंसेंट मैनेजर्स होंगे। इन मैनेजर्स का काम होगा चीजों को मैनेज करना और कंसेंट रिकॉर्ड को वेरीफाई करना, वेदर दीज रिकॉर्ड्स आर करेक्ट और नॉट। क्लियर? नाउ ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म होगा जहां पर यूजर्स विड्रॉ कर सकते हैं अपना कंसेंट एंड कंप्लेंट्स मस्ट बी प्रेस्ड। देन डेटा लोकलाइजेशन। सर्टेन पर्सनल एंड ट्रैफिक डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया। कुछ जो पर्सनल और ट्रैफिक डेटा है, लोगों का इंडिविजुअल डेटा है, दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया। क्लियर? और इन सभी चीजों पर गवर्नमेंट की कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड डेटा कैटेगरीज। अब अगर मान लीजिए डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग होती है तो फिड्यूशरीज को इन्फॉर्म करना होगा यूजर्स को, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो ब्रीचेस का ध्यान रखेगा। क्लियर? तो अब यहां पर ब्रीच कैसा भी हो सकता है, माइनर या मेजर। क्लियर? किसी भी तरीके का अगर डेटा हमारा ब्रीच हुआ है, ऑल मस्ट बी रिपोर्टेड। ऐसा नहीं कि माइनर डेटा था हो गया तो हो गया, नो, एवरीथिंग शुड बी रिपोर्टेड, ऐसा कहा गया है इस। देन गवर्नमेंट डेटा प्रोसेसिंग। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है दे मस्ट प्रोसेस डेटा लॉफुली, और पूरे सेफगार्ड के साथ उन्हें डेटा को प्रोसेस करना चाहिए किसी भी मिसयूज के बिना, ताकि हमारा डेटा, पब्लिक ने का जो डेटा है, जो पर्सनल डेटा है, बहुत विश्वास के साथ गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया है, उसका किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्प्लाइंस इश्यूज। क्लियर? ये जो कंसेंट का आपने इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। इट इज गोइंग टू टेक हाई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, वेदर यू आर गोइंग टू मेक ऑनलाइन और through any medium. Clear? It is going to take high infrastructure cost. It is impossible to manage in the country like India, where the population is more than 150 crores. That security concerns. There is lack of clear security standards. Security standards भी clear नहीं है. Then data localization debate काफी चल रही है. Like global tech firms है, Meta, Google, they oppose restrictions कि किसी भी तरीके के डेटा को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, है ना? तो ये कुछ चीजें। पेनल्टीज क्या लग सकती है? फाइन अप टू 250 crores फॉर नॉन कॉम्प्लायंस और डेटा ब्रीचेस। क्लियर? देन कंसेंट मैनेजर वायलेशन। अगर बार बार ऑफेंस होगा, इट मे लीड टू दी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो ये कुछ चैलेंजेस इसमें है। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड दिस थिंग बिफोर? कितने लोगों ने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ये वाले लॉज पढ़े हुए थे? ओके, धामी ने पढ़ा हुआ है, संजना ने भी पढ़ा हुआ है। देन ओके, बिकॉज प्रीलिम्स दे रहे तो इट इज ऑब्वियस कि आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा, है ना? और अच्छी बात है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि व्हेन यू स्टार्ट रिवाइज और व्हेन यू स्टार्ट रिवीजन फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, make sure you should be able to connect traditional as well as current. क्लियर? दोनों ही चीजों को आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, बिकॉज बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अभी जैसा कि हमने
बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किस में आता है? लॉज में। लॉ, है ना? तो आपके सामने स्क्रीन पे एक टर्म लिखा हुआ है लॉ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लॉ? बताइए कितने लोगों को पता है लॉ क्या होता है? ऑफिशियल रूल्स। ओके, ऑफिशियल रूल्स, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, लॉ का सिंपल सा मतलब होता है एनी कोडिफाइड नो। एनी कोडिफाइड लॉ। ओके, एनी कोडिफाइड लॉ। तो आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट्स मेन जॉब इज टू इम्प्लीमेंट दी लॉ, इज टू इम्प्लीमेंट दी लॉ। क्लियर? तो अब अगर सिविल सर्वेंट का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, so what is the biggest crime for civil servant? The biggest crime for civil servant is to violate the, समझ में आ रहा है? जब आपको ऑब्जेक्टिव ही है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, सो फॉर यू द बिगेस्ट क्राइम इज टू वायलेट द लॉ। क्लियर? नाउ दैट इज व्हाई फॉलो द लॉ और गेट इट चेंज। दो ही चीजें कर सकते हो, या तो लॉ फॉलो करो या लॉ को चेंज करो, है ना? नाउ इफ आई आस्क यू, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू थिंक और व्हाट इज द लॉ ऑफ लैंड, व्हाट इज लॉ ऑफ लैंड? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। सी, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ लैंड, है ना? और क्या है लॉ ऑफ लैंड? स्टैट्यूट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैट्यूट्स? स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स का मतलब ये होता है द लॉज विच आर क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये याद रखिएगा, क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? तो जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, दैट दोज आर परमानेंट। देन देयर आर टेम्पररी लॉज। टेम्पररी कौन सा होता है? ऑर्डिनेंस इज टेम्पररी। क्लियर? इसके अलावा और क्या क्या चीजें आ जाएंगी? थर्ड, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, जजमेंट्स। देन रूल्स एंड ऑर्डर्स, रूल्स एंड ऑर्डर्स। अच्छा, रूल्स एंड ऑर्डर्स कौन बनाता है? रिमेंबर दिस थिंग, रूल्स एंड ऑर्डर्स आर क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। अब समझो, स्टैट्यूट्स आर क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर, जजमेंट क्रिएटेड बाय जुडिशरी, रूल्स ऑर्डर क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव। एग्जांपल नीति आयोग, दे क्रिएट रूल्स एंड ऑर्डर्स। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस बाय लॉज, इसके अलावा और क्या आते हैं? बाय लॉज। ना बाय लॉज कौन बनाता है? विच आर मेड बाय लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी। दिस इज फिफ्थ। तो हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? 5 पॉइंट्स। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो द लॉज दैट वी हैव डिस्कस्ड, ओके, दैट इज वी हैव डिस्कस्ड 5 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 and 5. So all those things, like we have discussed constitution first, law of land, then we have discussed statutes which are created by parliament, state legislature, then judgments, then rules and orders, and then bylaws. So all these are together called as law of land. इन सभी को हम क्या कहते हैं? Law of land. Clear everyone? सभी को समझ में आ गया what is law of land? Okay. Now tell me, government किसको कहा जाता है? Tell me what is government? The one who governs. Okay. Whether executives are called as government, legislature or judiciary. बताइए रे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, किसको गवर्नमेंट कहा जाता है? ओके, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कुछ लोगों ने कहा लेजिस्लेचर, कुछ ने कहा एग्जीक्यूटिव, है ना? जब भी हम बात करते हैं ना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट,
In narrow sense, when we say government, that means executive. समझिएगा, narrow sense में अगर हम government का यूज करें, then executive. If it is broad sense, then it is executive, legislature, judiciary, all these things. So remember this thing, in broader sense, government is executive, legislature, and judiciary. Clear, everyone? This one is clear to all of you? Clear? Okay. अब सवाल ये उठता है, देयर वाज अ न्यूज लास्ट ईयर, एक चीज थी न्यूज़पेपर में, आप सभी लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, एंड दैट न्यूज वाज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू आर्टिकल 311. अब जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं वो आर्टिकल 311 से पूछने जा रहा हूं, और अब ये बताइएगा व्हाई दिस आर्टिकल 311 वाज इन द न्यूज. दिस इज रिलेटेड टू करंट. व्हाट इज आर्टिकल 311 and why it was there in the news? It is related to the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. Now, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir invoked Article 311. है ना? 311. क्यों? To terminate the services of 6 government employees. To terminate the services of 6 government employees. इसलिए इसको लाया. अब आर्टिकल 311 क्या कहता है, बताइए. आर्टिकल 311 talks about procedure, safeguard. Now, it says that the procedures and safeguard which are required before dismissing or removing or reducing the rank of a government employee on following grounds. अब grounds क्या हो सकते हैं? Employee efficiency. जब भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या जो एम्प्लॉय का कंडक्ट होता है, अगर वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है या हार्मफुल होता है गवर्नमेंट की एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए, तो उसको हटाया जा सकता है. दूसरा होता है एम्प्लॉय का कंडक्ट. समझ में आ रहा है? एक तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को देखते हुए, अनदर एम्प्लॉय कंडक्ट. अगर कोई एम्प्लॉय करप्शन, ब्राइबरी, फ्रॉड या किसी ऑफेंस जैसे एक्ट में जो उसकी मॉरल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है, तो भी उसको हटाया या डिसमिस किया जा सकता है. तो बेसिकली आर्टिकल 311 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज लाइक अ प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट द आर्बिट्री गवर्नमेंट एक्शन. ये प्रोटेक्टिव मेजर. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस वाज देयर इन द न्यूज़पेपर. सभी ने पढ़ा था? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 311 इट वाज देयर इन द न्यूज़. Clear? And it is very important for you prelims 2025. और इस आर्टिकल को कनेक्ट कर लीजिएगा अपने पॉलिटी के नोट से जो आपने पढ़े हैं क्लास पे. ओके निकिता, you want me to repeat? Okay, so write down Article 311. Article 311 talks about the procedure and the safeguard required before dismissing, removing, or reducing the rank of a government employee. Okay, now it is based on 2 graphs. Efficiency employee की देखी जाएगी, employee efficiency and employee conduct, which we have discussed. है ना? So this article actually क्या सर्व कर रहा है? This article serves as a protective measure against the arbitrary government. So this is like a protective measure against the arbitrary government action.